ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ପଠନ କରିବା। ସାଧୁ ଯହନଙ୍କର ସୁସମାଚାର ତହିଁର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ ଠାରୁ 29 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସାଧୁ ଯହନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସୁସମାଚାର ତହିଁର 10 ପର୍ବ 27 ପଦ ଠାରୁ 29 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢିବା। ମୋ ମେଷ ସବୁ ମୋହର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି ଓ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଆଉ ସେମାନେ ମୋହର ପଛେ ପଛେ ଚାଲନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଏ, ଆଉ ସେମାନେ କଦାପି କେବେ ହେଁ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ପୁଣି କେହି ମୋ ହସ୍ତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୋହର ପିତା ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁଠାରୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ଆଉ ପିତାଙ୍କ ହସ୍ତରୁ କେହି ତାହା ହରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବସିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିଅଛୁ। କରୋନା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଗଲା, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପାସନାର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କଲେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ମେଷ ପରି ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଷ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଷମାନଙ୍କର ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ସଯତ୍ନଶୀଳ ହେଇଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମେଷ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ। ମେଷ ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। ମେଷ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଗୋଟେ ପଶୁ। ମେଷ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମେଷ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଅଟୁ। ପ୍ରତିଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମେଷ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାଳକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଥାଏ। ମେଷ ଗୋଟେ ଏମିତି ପଶୁ, କୁକୁର ସୁଦ୍ଧା ତାହାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇବ। ସିଂହ ତ ଦେଖାଇବ, କୁକୁର ସୁଦ୍ଧା ଭୟ ଦେଖାଇବ। ଏଣୁ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଗଲା, ମାର୍କ ତହିଁର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜନଗହଳିକୁ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏମାନେ ଅରକ୍ଷିତ ମେଷ ପରି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମେଷ ପରି ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଠିକ ତଦ୍ରୂପ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଫଲି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କେଜାଣେ ତାହା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମେଷ ପରି ଘର ପରିବାରକୁ ସଜାଡୁ ସଜାଡୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ଥିଲେ ମନ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା କେଜାଣେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମେଷ ପରି।
आजिर शास्त्रांश को आम माने आधार करिबा कोरोना रोग जेतेबेले आसी अछि सेकेंड वेव जेतेबेले आसिला कोरोना रो एहा ए प्रकारे लोकंकर जीवन को अस्त व्यस्त करी अछि गोटे गोटे दिन रे 2 लाख तहिर ऊर्ध्व लोक माने मध्य संक्रमित होउछथि एनो प्रियमर प्रभुଙ୍କ दास दासी माने प्रभु आम्भ मानकर एकमात्र सुरक्षादायक मेषपालक अटंती आज ताहांको वाक्यर आमे गोटे मेष भावरे कोन करिवा दरकार आउ जदि गोटे मेषर कर्तव्य आमे करि अछु प्रभु आम मानकु केउ प्रकार सुरक्षा देबे दुई गोटे विषय को आम आलोचना करिबा 27 पदरे लिखा जाए यीशु कहले मो मेष सब मोर स्वर सुनंती आउ मु सेमानंकु जाने प्रभु कहले मोर मेष माने मोर स्वर सुनंती आज आमे जेते जण अछु आमे जदि यीशुंकर शाळार मेष बोली जदि निजको कहउछु ताहार दुई गोटी प्रमाण आमानकर मध्य रे रहिथिबा दरकार प्रथम प्रमाण आमे ताहांकर स्वर सुनिबा मेष हेइथिबा दरकार द्वितीय प्रमाण ताहांकर अनुगमन करुथबा मेष हेइथिबा दरकार मोहर मेष माने मोर स्वर सुनंती ता माने जे माने प्रभुंकर स्वर सुनु नाहंती प्रभुंकर मेष से माने नुहंती जे माने प्रभुंकर स्वर सुनंती से माने ही ताहांकर मेष अटंती बाइबल रे गोटिए ए प्रकार शब्द जहा को अधिक मात्रा रे जोर दे कह जाय ताहा हैला प्रभुंकर वचन प्रभुंकर वचन प्रभुंकर वचन पुरातन नियम रे भाववादी मानक द्वारा मते कहा जाउतला प्रभुंकर वचन यीशु स्वयं निजे कहले माथ्यू 13 अध्याय 8 पद रे जहार कान अछि से सुनु प्रकाशित वाक्य रे पवित्र आत्मा मध्य कहले प्रकाशित वाक्य रो 2 अध्याय रो 7 पद रे लिखा जाय मंडली गण को कोन आत्मा कहंती जहार कर्ण अछि से सुनु ता माने सुनिबा संबंध रे यह बाइबल रो प्रारंभ रे कहा जाउ अछि यीशु निजे मध्य कहले पवित्र आत्मा मध्य कहंती जहार कर्ण से सुनु माने कोन सुनु प्रभुंकर रोग ईश्वरଙ୍କ रोग सुनिबा द्वारा आमे तो कोरोना भाइरस पाई 2 वर्ष हैला निजर रोग को प्रभु को जणाइलो प्रभु एमते एमते हे जायछि प्रभु ए प्रकार परिस्थिति हे जायछि हमको तहिर रक्षा करो हम परिवार को रक्षा करो 2 वर्ष धरी निजर प्रार्थना निजर स्वर निजर डाक को आमे प्रभु को जणाउछु किंतु आजी प्रभु कहंती मोर मेष माने मोर डाक सुनंती ख्रिस्टियन जीवन केवल प्रार्थना रे आमे गुहारी करबा जीवन नुहे किंतु प्रभु कोन चाहंते आमानको मध्यरु ताहा मध्य तो पालन करबा दरकार मो आपण मानको कहबा पाई चाहे आपण जेतिकी प्रार्थना करी जेतिकी प्रभु को डाकी पाइबे नाही ता थारो अधिका प्रभु को रोग सुनी पाई जिबे आजि खाली मागिबा ख्रिस्टियन आमे हेइ अछु कोरोना भाइरस आसला पृथ्वी रो सब ख्रिस्टियन माने मागिथिबे किंतु प्रभु कोन मागु छते हमठारो मोर मेष माने मोर स्वर सुनंती प्रभु रोग प्रकाश करंती ताको लोक मानक ऊपरे प्रभुंको रोग जे माने सुनंती कोन कोन हुए से मानकर जीवन रे बाइबल रो केते गोटी मुख्य मुख्य अंश को हम माने अध्ययन करिबा इस्राएलिया मानक परमेश्वर कहिले जदि तुम्हे माने आंभ रोग रे अवधान करिवो गोटे महत आशीर्वाद प्रभु से मानक जणाइले यात्रा 15 अध्याय तहिर 26 पदरे लिखा जाए तहिरे लिखा जाए तुम्हे जबे अपना सदा प्रभु परमेश्वर को वाक्य रे मनोयोग करो और ताहांको दृष्टि रे जहा उचित ताहा करो
ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ। ଏଠାରେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଗଲା ଇଂରାଜୀରେ ଭଏସ୍, ଭଏସ୍ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରବରେ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ଓ ତାହାଙ୍କ ବିଧି ସମସ୍ତ ପାଳନ କର। ସମସ୍ତ ଉଣା ଅଧିକା ନାହିଁ, ଅଧା ଅଧା ନୁହଁ, ତାହାଙ୍କ ବିଧି ସକଳ ଯଦି ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସବୁ ରୋଗ ଭୋଗ କରାଇଲୁ ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରୋଗ ଶ୍ରବଣକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଯେ ସେ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଏ ଭାଇରସ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଗିନା ଥାଳି ମିଶା ବଜାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲେ ଫରକ ପଡିଲା ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୋଗ ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସକଳ ରୋଗ ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରାଇଲୁ, 3 ଗୋଟି ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗ ଆସେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜେନେଟିକ, ସେ ଲୋକ ତାହାର ଜନ୍ମଗତ ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବ ତାହା ଗୋଟିଏ ରୋଗ, ଜେନେଟିକ, ସେଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲି, ଆମେ ଯୋଉ ପରିବେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ, এই ପରିବେଶ ଯେମିତି କରୋନା ଭାଇରସ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରୋଗର ଶିକାର ହଉଛୁ, ଜ୍ୱରର ଶିକାର ହଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡରୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଆସେ ବେଳେ ବେଳେ। ଏହା ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମିଶର ଦେଶରେ 10 ଗୋଟି ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ ପଠାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବକ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ମିଶରୀୟ ରାଜା ତାହାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ଆସିଲା? 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 2 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମଶା ଯାଇ ଫାରୋଙ୍କ ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇ କହିଲେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ସେ କଣ କଲେ? ଫାରୋ ରାଜା ଫାରୋ କହିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ କିଏ ଯେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତାର କଥା ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ତାମାନେ ଏ ଫାରୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଗ ଶୁଣି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଗ ନ ଶୁଣିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ରୋଗ ଆସେ। ଗିହେଜି ବୋଲି ଏଲିଶାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ, 26-27 ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ନାମାନ ନାମକ କୁଷ୍ଠୀ ସେ ଆସିଲେ, ଏଲିଶାୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଲିଶାୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ହେଲେ ବିଷୟ ନେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗିହଜି ମଧ୍ୟରେ ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗିହେଜି ଆସିଥିଲା, ନାମାନ ଆସିଥିଲା, ସେ ସମୟ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବସିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗିହେଜି ଲୋଭ ଦେଖାଇ ନାମାନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା, ତାଠାରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା, ଫଳରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଗଲା ତାକୁ। ବେଳେ ବେଳେ ରୋଗ ଆସେ, କିଛି କାରଣ ନଥିବ, ଦେହ କ୍ଷୟ ପାଇ ଯାଉଥିବ, କାରଣ କୋଉଠି ରହିଲା? ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଅଠୁ, ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ରୋଗରେ ଅବଦାନ କରିଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଜଣେ 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀକୁ କହିଥିଲେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଜହନରେ 14 କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ପଢିବୁ, ଜହନ 5:14 ଲେଖାଯାଏ, ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ଘଟେ। ଏ ଲୋକ 38 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ରୋଗୀ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଲେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛ, ଆଉ ଥରେ ପାପ କର ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ପାପ ଥିଲା। 38 ବର୍ଷର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ପାପ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଆଗରୁ କହିଲେ ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ତାମାନେ ସେ ପକ୍ଷାଘାତରେ ପଡିବାର କାରଣ କଣ ଥିଲା? ତାର ପାପ ଥିଲା। ଏଣୁ
परमेश्वर रोबर अवधान करने नितांत दरकार। इस्राएल लोक मान हठात हठात समस्या आसी जाउथला जेहेतु से माने प्रभु को रोबरे कर्णपात करुनथे। आजिर परिस्थिति यह तो प्रथम कथा रोग अच्छी समाज मध्य परिवेश मध्य। द्वितीय कथा आम जीवन जापन जो शैली अच्छी आम जो आगे बंचुलु ताहा ठप हो जाइए। आग भाया सुख शांति आ परिवार मध्य देखा जाऊ ना। आग परी आमर फैमिली प्लानिंग गुड़ाक रही पारना। आमे आगरे जे प्रकार बंचुलु एवं अनेक परिवार रे तद्रूप देखा जाऊ ना। लॉकडाउन हेबा परे सबु घरे जे सुख आसी कौन सी प्रकार सत्य नुहे। अनेक लोक अभाव पड़ी भोकरे पड़ी अकाल पड़ी। ख्रिस्टियान परिवार गुड़कर से प्रकार विषय देखा जाइए। किंतु यार गोटे समाधान बाइबल धर्मशास्त्र कौन बोली कह आमे जे कौन परिस्थिति रे मध्य आमानकर गंतव्य स्थल रे लक्ष्य स्थल रे जदि पहुंचीबार अछि ईश्वर को रबर अवधान कर। बाइबल रे लिखा जाए आमे जदि यात्रा पुस्तक 23 अध्याय तहिर 22 पदरे लिखा जाए मात्र तुम्हे जेबे नितांत ताहांक रोबरे अवधान करिवो पुणी आम्भे जहा सब कहू ताहा करिवो तेबे आम्भे तुम्भ शत्रु मानकर शत्रु और तुम्भ बैरी मानकर बैरी हेबा। इस्राएलीय लोक माने किणान अभिमुखे जाउछंती किंतु शत्रु माने मध्य अछंती। आमे मध्य गोटे जीवन आरंभ कलु आग को बढ़ुछु किंतु समस्तଙ୍କର जीवन यात्रा निरामय जे अटे यह किसी ग्यारंटी नाही। अनेक समय विपद मध्य अछि। इस्राएलीय लोक माने जो देश को जाउथिले से देश मध्य अन्य मानकर द्वारा कब्जा करा जाइथिला। आमे जदि सही यात्रा पुस्तक 23 अध्याय 23 पदरे जदि देखो तहिरे प्रभु कहले कारण आम्भर दूत तुम्बे आगे आगे जाई तुमको इमोरिय हितिय पिरिसिय किणानिय हिबिय जीवुसिय मानको देश को आनिबे। ता माने जे देश को परमेश्वर से मानको नेउछंदी से देश अन्यर हस्तगत रे अछि। आमे बेले बेले आमे जहा पाइबा योग्य आमर जहा ताहा ऊपर मध्य अन्य जनकर कब्जा थाए। जहा आमर जहा मोर ताहा बेले बेले अन्य मानकर हस्त रे थाए। प्रभु कहले जदि तुम्हें आम्भर ऊपर अवधान करिवो से स्थान को आमे पहुंचाइबो। पहुंचाइबारे कोन सहाय्य करिवो 20 पद तहिरे लिखा जाए देखो आमे तुमको पथ रक्षा करबा पई और तुमको आम्भर प्रस्तुत स्थान को आनिबा पई तुम आगे आगे एक दूत प्रेरण करूछु। तुम्भर आगे आगे एठारे दूत कहले मसा को बुझाए ना। दूत कहले यीशु को बुझाए। मोहर मेष माने मोर स्वर शुणती मोहर पछे पछे चलती तामने सम्मुख रे गोटे दूत जा गले ही आमे आपना गंतव्य पथ को जीवो। अनेक फैमिली लाइफ रो कथा आग को बढ़ी पारु नाहंती। प्रिय माने इस्राएलीय मानकर पाई मध्य किणान जीवा रास्ता एते सहज नथिला। द्वितीय विवरणी पुस्तक 8 अध्याय 15 पद जदि आमे देखिबो तहिरे लिखा जाए जे तुम्भर भविष्यत मंगल निमंते तुमको नम्र करिवाकू और तुम्भर परीक्षा नेबाकू जलादायी सर्प और बिछा पुणी निर्जल शुष्क भूमि थिबारी विस्तीर्ण भयानक प्रांतर दे तुमको गमन कराइले। तामाने तुम्भर भविष्यत मंगल निमंते किणान को गले भविष्यत मंगल हेबो किंतु जीवार मार्ग एते सहज मार्ग नाही। सेठी जलादायी सर्प माने अछि से मार्ग रे निर्जल अछि जल नाही प्रांतर भयानक स्थान भयानक जहा मनुष्य
बेले बेले चलिबा पई मध्य अक्षम हो जाए। ए इस्राएल माने नैराश्य हताश हो जाउतले, मसा तमे कोठु नै आसिला हमको मारि देबा पई, किंतु भविष्यत मंगल। बेले बेले प्रभु आम मानक पई सुखमय भविष्यत रखि थांती, किंतु चलिबारे आमे बेले बेले फेल हो जाउ। सबु सफलता पई जे केवल सरल मार्ग थिबा एमति किछि ग्यारंटी नै। चैलेंजेस अछि बंचिबा पई। एठारे सर्प माने ता माने कोन, हमकु बाधा देवा पई गोटे गोटे शक्ति मध्ये अछि, किंतु आमे जदि अतिक्रम कलु आगु कोन भविष्यत मंगल अछि। जदि तुमे ईश्वरकर ऊपर अवधान करिवो, से जलादायी सर्प को मध्ये अतिक्रम कराई परमेश्वरकर दूत तुमको से मंगलमय स्थान पर नै जिवे। किंतु इस्राएली माने सुनले नै, टिके कष्ट हे गवा द्वारा प्रभु को छाड़ी देले, सुवर्ण बाछुरी आडक अग्रसर हेले। काहे कि हमको बेले बेले प्रभुंकर खाली खाइबा शिखिछु, प्रभुंकर मानिबा शिखिनु। टिके जते बेले कष्ट हे जाए हमको आउ से कष्ट रे रहिबा को इच्छा नै। इस्राएली माने ठीक तद्रूप कले, किंतु देखु नांते भविष्यत मंगल भविष्यत होते अछि। एमिति एक देश अछि जेउ देश ईश्वरंकर दृष्टि रे अनुग्रह पाइथिबा गोटे देश, दुग्ध मधु प्रवाही देश, किंतु एमाने अल्प समय कष्ट को बोली एमाने छाडुछथि। एमाने जते बेले प्रभु कर बसुले नै कोन घटिला। आमे जते बेले जिहोशुआ पुस्तक 5 अध्याय 6 पद रे जदि आमे देखिबो, तहिरे लिखा जाय, जिहोशुआ पुस्तक 5:6, मिस्ररु निर्गत समस्त गोष्ठीय लोक जोधा मनुष्य माने सदा प्रभुंको रोब न शुणिबा सकाशु सेमानंकर संहार पर्यंत इस्राएल संतानगण 40 वर्ष प्रांतर भ्रमण कले। प्रभु गोटे दंड देले कोन, एमाने प्रभुंको रोब न शुणिबा द्वारा 40 वर्ष प्रांतर रे बुलुछंती, किंतु एमानकर लक्ष्य स्थल केते दिनर बाट थिला। गणना 14 अध्याय 34 पद, तहिरे लिखा जाए, तुम्हें माने जो 40 दिन, आउ थरे कहूची, तुम्हें माने जो 40 दिन देश अनुसंधान करियछ, सही दिनर संख्या अनुसार एक एक दिन पाई एक एक वर्ष, ए रूपे 40 वर्ष पर्यंत तुम्हें माने अपना अपना अपराध बहिबो। ता माने एमाने पहुंचीबा पाई केवल 40 दिनर बाट प्रभुंकर रोब शुणिले, बिछा को देखिले, गोटे जगह को गले पानी मिलु नै, शोष लागि गला, शरीरर ए कष्ट को टिके हेले से माने सहय करि पारले नै। 40 दिनर केवल बाट रोब न शुणिबा द्वारा ता 40 वर्ष हे गला। अनेक समय रे गोटे आमे जेतक समय रे जहा आमे पाइबा दरकार ताहा न पाइबार कारण कोन, ए लोक माने देश अनुसंधान करिथिले 40 दिन रे। अनुसंधान कहिले देखिबा विषय को बुझाए। एमाने भविष्यत जो मंगल भविष्यत प्रभु रखिछन्ति 40 दिन रे देखि दे सारिकिरे आसी गले, देखि देले। देखिबा और पाइबा मध्यरे पार्थक्य अछि। आमे तो 40 दिन कोन 40 मिनिट रे मध्य बहुत बड़ मंगलमय दृश्य को देखि दे पारिबो। ड्रीम हमर बड़ हिथिबो, प्लान हमर बड़ हिथिबो, किंतु पाइबाटा एते सहज नै। अनेकंकर स्वप्न, अनेकंकर इच्छा अछि, तांकर जीवन रे से माने किछि करिबा पाए, आमानकर प्लान बहुत अछि। आमे कम समय रे बहुत बड़ विषय देखो, बहुत भलो विषय देखो, किंतु ताहा जदि आमे हासिल करिवार अछि, किछि किछि कष्ट तो सही हेबो, किंतु ईश्वर को रोब रे अवधान करि कि जदि जाइछु, प्रभु उपयुक्त समय रे ताहा मान को दे देबे। किंतु इस्राएल मान को पय तद्रूप हेला नै। म आपण मान को कहबा पय चाहे,
आजर परिस्थिति मत ठीक से आम मानकू जदि आग को बढ़िबार अछि प्रभु को रबर कर्णपात करबा। तृतीय कथा मुझे सर्टकट करी बोली इच्छा करे। बेले बेले कौन हुए प्रभु को वाक्य न शुणिले बेले बेले सफल व्यक्ति मध्य नष्ट हो जाए। सफल व्यक्ति आज जे माने भावुथबो बेले बेले मो लाइफ रे प्रभु सब किछि दे देले मो पाखे सब किछि अछि बोली जते बेले आमे भाबू सफल हेला लोक मध्य प्रभु को कथा न शुणिले नष्ट हो जाबार संभावना अछि। साउल राजा ए साउल राजा 15 अध्याय प्रथम सामुएल 19 अध्याय अनुसार से प्रभु को रब शुणिले ना। प्रभु जहाँ चाहूले ताहा शुणिले ना। प्रभु कहले आमे तुम्भ ठारू तुम्भर सिंहासन को चिरिके नै जीवो। जेतेबेले प्रभु ताहार सिंहासन को हटाइले प्रभुत्व को हटाइले अथॉरिटी को हटाई देले एबे आउ जेते चेष्टा कले मथे ताहा से पाई पारो नै। शेषरे से अक्लांत परिश्रम कले से हराई थिबा प्रभुंकर सही आशीर्वाद को किंतु ताहा मिलु नै। शेषरे नाको गोटे भूतुड़िया स्त्री पाखक मथे जीवाक पड़ला तथापि मिलला। सामुएल कहले 28 अध्याय 18 पद रे लिखा जाए आमे जदि बाहर करी पढिबू प्रथम सामुएल 28 तहिर 18 पद। सामुएल कहले जेहेतु तुम्हें सदा प्रभु को रब शुणिल नाही और अमालेक प्रति ताहाको प्रचंड कोप सफल कल नाही एहेतु आज सदा प्रभु तुम प्रति एही कर्म करि अछंती। सफल व्यक्ति नष्ट हो गला। एणु प्रिय माने ए समय हुए तो आमान को पाए कष्टर समय अटे। आमे चालिबा पाए बेले बेले हुए तो कष्ट हेउछि आमान को पाए किंतु असंभव नुहे। प्रभु को रब जदि आमे सुनि चाली अछु प्रभु आमान को सम्मुख रे गमन करिवे। तृतीय कथा ईश्वर को रब शुणिले गोटे फैमिली मध्य प्रोटेक्टेड हेकि रहे। आदम हवांकर कथा मो कहबी सबुठारो इंटरेस्टिंग कथा। आदि पुस्तक 3 पदरे लिखा जाए 3 पर्वर 8 पदरे लिखा जाए कहूँ दिनावसान समय रे उद्यान मध्य रे गमनागमनकारी सदा प्रभु परमेश्वर को रब शुणी आदम और ताहांको भार्या सदा प्रभु परमेश्वर को छामर उद्यानस्थ वृक्षगण मध्य लुचिले। जेतेबेले परमेश्वर सृष्टि कले एदम गोटे परिवार थिला। एदन उद्यान ताहा बगीचा बोली आमे भाबिबा उचित नुहे। एदन उद्यान गोटे एमिति फैमिली जो फैमिली रे सिंह आउ ठेकुआ मध्य गोटे पाके थिबे चिता बाघ आउ बाछुरी मध्य गोटे पाके थिबे। आ ए सब आदम हवांकर कथा माने किरी रहुथबा प्राणी माने जीव जंतु माने काहे कि प्रभु सृष्टि रो आरंभ रे सेमानकु अधिकार देते जे तुम्हें सकल प्रकार उरगामी भोज्यर इत्यादि प्राणी मानक ऊपर तुम्हें कर्तृत्व कर। तामाने आदम हवा जहा कहिबे पशु पक्षी माने मानिकी चलिकी अछंती तामाने एदम उद्यान गोटे फैमिली। सब दिन दिनावसान समय रे परमेश्वर तहिरे गमनागमन करती और ए सब कौन करती परमेश्वर को रब शुणती। जेते दिन जाए एई लोक माने ईश्वर को रब शुणी छंती दिने हेले माने निजर स्वर को प्रभु को जणाई नाहंती। जेते दिन जाए प्रभु को कथा शुणुछंती दिने हेले मान को प्रार्थना करबा को पड़े नै। आदम के बेहले प्रार्थना करि नै हवा के बेहले प्रार्थना करि नाहंती। दिने प्रभु कौन से विषय रे अभाव करि नाहंती। एमान सब दिन प्रभु को कथा शुणंती किंतु गोटे दिन कौन हैला दिनावसान समय रे प्रभु को रब जते बेला आसला सेते बेला को ता आगर एमान पाप करि दैछथि। तामाने मन रखिबा दरकार
आदि पुस्तक 3 अध्याय 10 पद लिखा जाए जेतेबेले ए प्रभुंकर रोब आदम सुनिले से कहिले मो उद्यान मध्य तुम्भ रोब शुणी आपना उल्लंघता सकाशे भीत होई लुचिली। तामाने ईश्वरकर रोब पापर विरुद्ध रे आसे। प्रिय ईश्वरकर दास दासी माने एमाने सेदिन प्रभुंकर रोब शुणिबा आगरु शयतान रो कथा मानि दैछथि। प्रभुंकर कथा शुणिबा पाई मते गोटे प्रस्तुति दरकार। आमे ईश्वरकर रोब जदि शुणिबार अछि प्रथम रे शयतान रो हाबुड़ ठारू मुकुलिबा आवश्यक। शयतान केबेले चाहे ना जे आमे ताहांकर प्रभुंकर रोब को शुणिबु बोले। सेदिन गोटे सर्प बेसर आसले एमिति भुलाइला एमानकर जीवन नष्ट हो गला, शापग्रस्त हो गले, एदन उद्यान रो बाहर पड़िले, एदन उद्यान पर गोटे पीसफुल फैमिली नष्ट हो गला, भूमि शापग्रस्त होला। मु गोटे विशेष कथा आपण मानक कहबा पाई चाहे जेते बेले होबा पाप कले सेथिरे मध्ये गोटे चांस थिला प्रभु से पाप को सेठी ही नष्ट करि देथाते। हवा जेतेबेले पाप कले से पाप हवा भितरे थिला, जगत ऊपर नथिला। 3 अध्याय 17 पदरे जहा लिखा जाए आउ से आदम को कहिले जो वृक्षर फल खाइबा विषय आम्भे तुमको आज्ञा दे कहिथिलु ताहा खाइबो नाही, तुम्हे अपना भार्जियार कथा सुनि ताहा खाइयछ, एनु तुम्भ सकाश भूमि शापग्रस्त हैला। हवा जेतेबेले फल खाइतले से पाप हवा भितरे थिला, जेतो आदम भितरे नथिला, भूमि ऊपर नथिला। किंतु ये हबार कथारे भूली गलाई मध्य। हवा तो शैतान भुलाइला, आदम को के भुलाइला तार निजर जीवन जाको से जीवन बोली ना देछि। जीवन बेले बेले मु आपण मानक कहबा पई चाहे निजर जीवन परि जाको भाबु छथि से मध्य जदि आपण को पाप कराउछि बोले के बेले करो नाही। आदम को नष्ट करिवा पाई, आमको नष्ट करिवा पाई बेले बेले ए शत्रु शैतान को माध्यम रे बाहर दुनिया रो लोकन को आनी पाप कराइबो नाही। आमो ठारे आमर घरे थिबा विषय को देखाई पाप करे। आमर उद्यान रे आगा सत ज्ञानदायक वृक्ष बाहर थिला कि नाही, आमर घरे आगा अछि। निजर अस्थि ठारू ही आदम पापरे पड़ले। एथिपाई जहा को आपण अति स्नेह करूछंती तार माने एहा नुहे जे तार भूल को मध्ये आपण मानंतु। आइबो जदि निजर स्त्री रो कथा सुने देई थांदा तार भविष्यत रे पिला माने से माने आ आशीर्वाद पाई न थांते, तांकर नाम आ बाइबल रे आसी न थांदा। भूमि शापग्रस्त हो गला। प्रभु जदि चाहि थांते से दिन ही से पाप नष्ट ही थांदा। एबे भूमि शाप आदम मध्य से पाप अंशी हो गले, भूमि शापग्रस्त होला। ता माने आमे मने रखिथिबा दरकार जे जेउ सृष्टिकर्ता ईश्वर आमे टिके से पद का आहुरी टिके पढिबा 3 अध्याय 17 आउ से आदम को कहिले जे वृक्षर फल खाइबा विषय आमे तुमको आज्ञा दे कहिथिलु ता खाइबो नाही, तुम्हे अपना भार्जियार कथा सुनि ताहा खाइयछ, एण तुम्भ सकाश भूमि शापग्रस्त हैला, तुमे जाब जीवन क्लेश रे तहिरु भक्ष्य पाइबो। काहे कि मो एक कथा कहिली हवा मध्य रे पाप आसिला पर भूमि शापग्रस्त हे नथिला बोली, जेहेतु हवा सृष्टि हेइथिले आदम रो शरीर रो, किंतु आदम कोठो सृष्टि हेइथिले धूली रो। सेथिपाई ये जते बेले पाप कला भूमि शापग्रस्त हो गला, भूमिर सकल प्राणी शापग्रस्त हो गला। आज मु समस्त को गोटे कथा कहबा पाई चाहे, आमे जते बेले निजर सृष्टिकर्तांकर विरुद्ध रे पाप करू, जे हमको सृष्टि कले से पिता माता हुअन्तु, आदमंकर पिता थिले परमेश्वर,
से कौन सी नारी गर्भरु जन्म ही नथिले ताहांकर पिता थिले परमेश्वर ताहांकर विरुद्ध सृष्टि करबा द्वारा कोन पाप करबा द्वारा कोन हैला निजर उत्पत्ति स्थल ताहार शापग्रस्त हो गला आमे जेउठारो बाहरी छु बेले बेले आमे जदि निजर सृष्टि करता पितामाता हुअन्तु बा परमेश्वर हुअन्तु ताहांकर विरुद्ध जेतेबेले पाप करू निजर उत्पत्ति स्थल मध्य नष्ट हो जिवो आमे निजे जोठु बाहरी छु सेठी मध्य कष्ट रे जीवन यापन करबा पड़बो एथि पई ईश्वर को रब सुनिबा नितांत दरकार अनेक कथा अछि म आगु को पढाई नै समय बहुत हला म क्षमा चाहे एथि पई परमेश्वर को रब जदि सुनि अछु आमे सुरक्षित क्रिश्चियन हेबो पाप ठारो दूरे रहिबो परमेश्वर को रब सुनिबा लोक मानक पई प्रभु गोटे उत्तम भविष्य रखते प्रभु ये पवित्र वाक्य हम प्रत्येक को आशीर्वाद करते आमेन कल्याण वाक्य ग्रहण करिबा समस्त बोधर अगम्य जे ईश्वर शांति ताहा मन को हृदय मन को ख्रीष्ट जीशु को सहभागिता रे सुरक्षा कर रखिबो आमेन।